Good morning, students. In science, we are reading chapter 12. So, our today's topic is sound produced by animals. Just see, we have come to know how the sound is produced in case of human beings or us. So, there is a vocal, there is a but larynx. There is larynx, and a larynx contain the vocal cords. Those vocal cords can be tightened or loosened, made thinner or thicker. Their size vary, tautness vary, thickness vary in case of men, women, and children, and that is why there is difference in sound produced by children, men, and women. Okay, so that we have come to read in our last video. So today let us go ahead. Sound produced by animals. तो देखो अदर एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड. तो एनिमल्स, तो यहाँ पर देखो लाइक ह्यूमन बींग्स देयर आर क्वाइट ए फ्यू एनिमल्स दैट प्रोड्यूस साउंड बाय मीन्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स. ह्यूमन बींग्स का वोकल कॉर्ड्स है. वी हैव गॉट लैरिंग्स containing vocal cords. Similarly, in case of animals also, there are vocal cords. Or so when dogs bark, cats mew, horses neigh, lion roar, or cow moos, they all they are all using their vocal cords to vibrate. Vibration is necessary. So sound in case of human beings or animals, sound is produced in the क्या larynx or the voice box by the help of the vocal cords. Vocal cords. Now let us see how the birds produce sound. तो उसका भी वॉइस बॉक्स है. तो उसका वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड्स नहीं है. अगर है भी तो उसको नाम अलग है. तो देखो क्या है. बर्ड्स हैव रिंग ऑफ कार्टिलेज. Birds have ring of cartilage. Cartilage are neither muscles nor bone, and so these are tough tissues. So birds have a ring of cartilage called the syrinx in their windpipe. Okay, in their windpipe there is a ring of cartilage called syrinx. They use it instead of vocal cords in their voice box to vibrate. तो उसका voice box में vocal cord नहीं है, syrinx है, ring of cartilage है. ठीक है, और वही cartilage ring यानी syrinx को ही vibrate कराता है, ring of cartilage को. This characteristic sound. So voice box, they use it instead of vocal cords in their voice box to produce their characteristic sound. This characteristic sound is jarring or unpleasant one in case of birds like crow, but is a pleasant and soothing one in case of birds like quail, parrot or moina. तो किसी किसी का क्या unpleasant sound है, jarring sound, और किसी किसी का pleasing sound है. That depends upon the nature of the strings in the windpipe. Now let us come to know about insects. Insects like mosquitoes and bees make their characteristic sound by vibrating their wings rapidly. And they vibrate their wings and they produce sound. Now bats also produce sound by vibrating their wings. The more rapid the vibration of their wings, the higher is the pitch of the sound. Higher pitch मतलब higher frequency. Okay, or shriller sound. श्रिल होगा, तीखा होगा. Higher is the pitch of the sound produced by them. Frogs, while croak, are known to puff their vocal sacs. इसका vocal sacs है frogs का, है ना. up their throat like a balloon. और vocal sacs को up करता है, उसका throat में है balloon जैसा फुला लेता है हवा भर के. additional inflation of their throat helps them to make croaking louder sound होता है. ठीक है ना. they produce the sound louder by making the vocal sac larger. ज़्यादा हवा भरेगा तो ज़्यादा sound निकल पाएगा. लेकिन it is not a pleasing sound. It is a jarring sound or unpleasant sound. We thus realize that our world of sound is really diverse and emerging one, and there are various types of sound. It is perhaps one of the reasons that makes our earth such a unique and lively and interesting planet. ठीक है, इसलिए अलग अलग साउंड भी हम सब सुनते हैं. हमारे घर में कितना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रखे हैं जिससे साउंड हमें लेना चाहते हैं. It is necessary. Now propagation of sound. Propagation means how can sound move from one place to another. है ना, we are speaking तो हम सब we are shouting तो दूसरे को सुनाई देता है. तो उसके तो दूसरा जो सुन रहा है उसके पास कैसे पहुंच रहा है ना. हवा के माध्यम से हो सकता है ना, लिक्विड के माध्यम से, एयर मीडियम में भी, एयर मीडियम में भी, वाटर लिक्विड्स मीडियम में भी, सॉलिड्स. सो वी शैल कम टू नो दैट मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपागेशन ऑफ साउंड. साउंड को एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए एक तो मटेरियल मीडियम, एक तो मीडियम चाहिए. दैट मीडियम में भी गैसियस मीडियम, दैट में भी लिक्विड मीडियम, और दैट में भी ए सॉलिड मीडियम. मीडियम इज नेसेसरी. और उसको देखो कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड. साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एक तो मीडियम चाहिए, है ना. द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मस्ट वाइब्रेट, देन ओनली साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड.
So we need, for production of sound we need a material medium, and for propagation of sound also we need a material medium. It may be gases, it may be liquids, or it may be solids. ठीक है. So देखो, the unlike the earth, the moon has no atmosphere. मून में एटमोस्फियर नहीं है, तो अर्थ में एटमोस्फियर है, तो इसलिए हम सब जहाँ भी बात करते हैं दूसरे को सुनाई देता है. मून में दो दोस्त जाकर अगर बात करोगे तो एक का आवाज दूसरे को सुनाई नहीं देगा. यू विल नॉट बी एबल टू हियर द साउंड ऑफ योर फ्रेंड हु इज स्पीकिंग टू यू इन द मून surface. So even if a loud explosion were to take place at any point on the moon, it would not be heard even at nearby point. So सुनाई नहीं देगा मून में, क्यों ना, वहाँ कोई एटमोस्फियर नहीं है. ठीक है. The Earth's atmosphere extends to a height of nearby 200 kilometer. Earth's atmosphere, देखो, Earth's atmosphere extends to a height of nearby 200 kilometer above its surface. There may be many explosions and noises taking place in the outer space, but we do not hear them. Outer space में जहाँ कोई मीडियम नहीं है ना, हमारा एटमोस्फियर है तो कितना ऊंचाई तक है, लगभग 200 किलोमीटर ऊंचाई तक है. उससे आगे स्पेस है, तो स्पेस में बहुत सारे प्लैनेट्स है ना. देयर आर हेवनली बॉडीज व्हिच आर कोलाइडिंग. आवाज होता है, बहुत भयंकर आवाज होता है, लेकिन सुनाई हम सबको नहीं दे रहा. क्यों ना, स्पेस में कोई मीडियम है नहीं, इसलिए अर्थ को नहीं पहुंचता है, हम सबके पास नहीं पहुंच रहा है. एज देयर इज नो मटेरियल मीडियम इन द स्पेस. So it has now been established that sound needs a medium for its propagation. तो जब साउंड को जाने के लिए या साउंड को ट्रांसफर होने के एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए एक तो मटेरियल मीडियम जरूरी है. इट कैन नॉट प्रोपागेट विदाउट इट, है ना. देखिए, इट कैन नॉट प्रोपागेट थ्रू वैक्यूम. वैक्यूम मतलब खाली जगह, मतलब स्पेस. सो जहाँ कोई मीडियम नहीं है वैसा जगह इट, है ना, वैसा जगह पर ये प्रोपागेट नहीं करेगा. इट कैन हाउएवर प्रोपागेट थ्रू all the three states of matter, gases, liquids and solids. तो जहाँ मटेरियल मीडियम नहीं है, वैक्यूम जहाँ है, वहाँ साउंड प्रोपागेट नहीं करेगा, एक जगह से दूसरा जगह नहीं जा पाएगा. लेकिन अगर गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, इसके माध्यम से साउंड लेकिन चल सकता है, जा सकता है. we can verify the fact that material medium is necessary for propagation of sound and by the following activity. तो तुमसे तीन तो एक्टिविटी दिखाया है. here is one, here is another and here is also another. तो यहाँ देखो, वायर मीडियम लिया साउंड को, एक आवाज कर रहा है, दूसरा साउंड सॉलिड मीडियम के माध्यम से सुन रहा है. ठीक है. ही इज होल्डिंग ए वायर फ्रॉम वन एंड टू द अदर. बगल में जो एयर में खड़ा है उसको सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन इसको सुनाई दे रहा है. ये जो आवाज कर रहा है, ही इज प्रोड्यूसिंग साउंड एट वन एंड ऑफ द वायर एंड ही इज हियरिंग द साउंड, बट ही इज नॉट गेटिंग द साउंड. he is not hearing the sound, one who is just in the air. So here air is the medium, here solid is the, यानी gas is the medium, here solid is the medium, here liquid is the medium. देखो, यार गमला लो, आज दो पत्थर टकराओ तो क्या होगा, आवाज होगा तो तुमको सुनाई देगा दूर से ही, है ना. अब तुमको या कान ये पानी भर दो, अब तुम आवाज करो, देखो तुमको ज्यादा सुनाई दे रहा है ना, तुमको साउंड ज्यादा सुनाई देगा. हवा में जितना साउंड जा रहा था, है ना, उससे तुमको ज्यादा आवाज सुनाई देगा, है ना. यू विल हियर इट फास्टर. उस तरह से गैस में देखो, जब ये हवा भरा हुआ तो तुम इसको हिलाओ, बेल विल रिंग, तो तुमको सुनाई देगा. हवा को निकाल दो प्रेशर पंप है, प्रेशर पंप से हवा को हम सब क्या करते हैं, इवैक्यूएट द जार बाय ऑपरेटिंग द प्रेशर पंप. तो हवा निकाल दो, उसके बाद इफ यू शेक द बेल जार, हवा तुम बेल जार घंटी बजाओ, लेकिन तुमको आवाज सुनाई नहीं देगा. क्यों ना, यार था जैसे कि ये द बेल vibrates, that vibration is passed to the air, from air to the surface of the bell jar and from bell jar surface to the air and then to our ear. इस तरह से सुनाई देता है. तो यहाँ तो एयर निकाल दिया गया, कोई मीडियम नहीं अंदर, इसलिए ये तो रिंगिंग साउंड हुआ, but it has not propagated because there is no medium, it is not getting any medium, and it is vacuum. इसलिए साउंड ट्रांसफर इसका बॉडी को नहीं हो रहा, बॉडी से बाहर भी नहीं आ रहा. ठीक है. So all these activities show that sound needs a material medium for its propagation. That material medium may be gases or may be liquids or may be solid. Okay. So देखो यहाँ पर if you press your ears against the tube tub wall and strike the piece of stone under water, you will get the sound. This sound reaches your ear by propagating through water. Through water माध्यम से भी sound ज़्यादा जाता है. इस तरह से अगर सुनोगे. So अब देखो, साइंटिस्ट आर नाउ एबल टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू एयर, है ना. व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू एयर, 330 मीटर पर सेकेंड. वेयर इज स्पीड थ्रू वाटर इज क्लोजर टू 1500 मीटर पर सेकेंड.
और वाटर में स्पीड ऑफ साउंड कितना है 1500 मीटर, करीब करीब 5 गुना ज़्यादा है, 4.5 गुना, फोर एंड हाफ टाइम्स। साउंड दस प्रोपागेट्स मच फास्टर थ्रू लिक्विड्स एज कम्पेयर टू गैसेस। और देखो रेलवे ट्रैक्स में अगर कान रखोगे तुमको पता चल जाएगा ट्रेन कहाँ है क्या नहीं? तो क्यों ना, साउंड ट्रेवल्स वेरी फास्ट है ना, तुमको तुरंत सुनाई देगा कहाँ कितना दूर का भी आवाज है। सो यू कैन हैव एन आइडिया रिगार्डिंग ट्रेन इज कमिंग और नॉट, और वेयर द ट्रेन इज, up to how much distance the train has moved. Precise measurements show that speed of sound in solid is more than that in liquid. तो देखो स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स इज मोर देन द गैसेस, और फिर यहाँ बोल रहा है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज मोर देन द लिक्विड्स, यानी स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम किस में हो रहा है? द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन केस ऑफ सॉलिड्स, देन इन लिक्विड्स एंड देन इन गैसेस। मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड होगा और मिनिमम स्पीड ऑफ साउंड किस में होगा? गैसेस में होगा, है ना। लाइट प्रोपेगेट फास्टर देन साउंड, तो ये तो हम सब 7 में ही पढ़े हैं। लाइट प्रोपेगेट, कहीं थंडर एंड लाइटनिंग होता है, बादल टकराता है तो थंडर एंड लाइटनिंग दोनों एक ही साथ होता है, लेकिन लाइटनिंग तो तुरंत दिखाई देता है लेकिन साउंड थोड़ा बाद में आता है, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है कि जो अगर कोई थंडर एंड लाइटनिंग के चलते कोई शॉक लग गया किसी को, हाँ, तो उसका इफेक्ट हो जाता है, डेथ हो जाता है, और कुछ नहीं तो बहुत कुछ हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो साउंड पहुंचने से पहले ही हो जाता है ना। साउंड पहुंचने से पहले ही हो जाता है, क्यों ना, वो करंट जो स्पीड ऑफ लाइट, करंट तो पास करता है स्पीड ऑफ लाइट जैसे, इसलिए उसको शॉक कर लग गया, है ना, कुछ भी हो सकता है, उसके बाद साउंड पहुंचता है। तो ये हम सब सोचते हैं, वी थिंक दैट साउंड बाद में होता है, ऐसा नहीं। द साउंड एंड लाइटनिंग, थंडरिंग एंड लाइटनिंग टेक प्लेस एट द सेम टाइम, बट द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। इसलिए क्या, लाइटिंग तुरंत दिखाई देता है और साउंड थोड़ा बाद में आता है। तो यहाँ देखो तो मेजरमेंट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट एंड साउंड टेल अस दैट लाइट प्रोपेगेट्स वेरी फास्ट एज कंपेयर टू साउंड, and the speed of light is very fast than the sound. The speed of sound in air is nearly 330 meter per second. The speed of light in vacuum as high as nearly 3 lakh kilometer per second. 3 lakh 30 meter, 330 meter, और यहाँ 3 lakh kilometer per second. The speed of light in air is very high. Thus light propagates nearly a million times faster than the sound. तो इसलिए speed of light is 1 million times faster than the sound, speed of sound. Hence when lightning and thunder occur, देखो, when lightning and thunder occur together, the flash of lightning reaches us practically in no time, that is 0 time, तुरंत। the sound of the thunder however takes a few seconds to reach to us, तो lightning तो तुरंत 0 time में पहुंच जाता है, within a fraction of second. We therefore hear the thunder a little later after seeing the flash of light, ठीक है। So let us wait for the next in our next videos.